Dear students, you can see here we have two sentences. First is, my teacher has taught me that the earth revolves around the sun. And second one is, suddenly she gave a loud scream and fell to the ground. Okay? अब पहला सेंटेंस जो है हमारा, यहाँ पे here are two verb forms. यहाँ पे दो verb forms हैं. फर्स्ट इज़ इन V3 एंड सेकेंड इज़ इन V5. पहला जो है वो V3 में है. अब इसको V3 के कैटेगरी में क्यों रखेंगे? बिकॉज हियर इज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़. ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ है हमारा. एंड वी ऑल नो वेरी वेल दैट वी ऑलवेज यूज V3 विथ हैज़, हैव एंड हैड. ओके, तो अगर थॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ गया तो ये V3 हो गया. और अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इफ़ देयर वुड बी नो हेल्पिंग वर्ब, तब हम लोग इसको V2 मान के चलते हैं. बिकॉज we know all of us know it very well, the verb form of teach, it is teach, taught. Okay, V2 में भी सेम रहता है और V3 में भी सेम रहता है, but here it is V3 because here is helping verb has, तो ये V3 हो गया हमारा. So next is revolves, this is V5. V1 plus S oblique E is equal to V5, then it is V5, ये V5 हो गया. Now you can see here, ठीक है, what is the point that is to be noted, that in a sentence, एक सेंटेंस में there are two types of verb forms. एक सेंटेंस में दो तरह के verb form हैं. ओके, पहला V3 में है और दूसरा V5 में है. And in the second sentence, suddenly she gave a loud scream and fell to the ground. In this sentence here, gave is also in V2 and fell is also in V2. Give, gave, given, fell, fall, fallen. Sorry, fall, fell, fallen. Okay, तो यहाँ भी V2, यहाँ भी V2. And this is a little bit confusing. यही confusion है यहाँ पे कि पहला sentence में there are different verb forms and the second sentence there are same verb forms. So to solve this confusion we will see our first chapter, sequence of tense. Means अगर कोई ऐसा sentence हमें मिल जाता है where there are more than one verb, okay, एक से ज़्यादा verb हैं, okay, या फिर लगाने हैं, तो फिर उसको किस verb form में use करना है. Then we are going to see this in our first chapter, sequence of tense. Okay, sequence means anukram. See here, according to the sequence of tenses, the tense of the verb in a subordinate clause follows the tense of the verb in a principal clause. Sequence of tenses के अनुसार what is the rule कि principal clause का जो verb होता है, okay, the verb of the principal clause, वो जो है उसी के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के अकॉर्डिंग ही सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब होता है. सो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सीक्वेंस ऑफ टेंसेज यू मस्ट नो अबाउट प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे. दैट्स वाई आई हैव सेंड यू अ वीडियो रिगार्डिंग प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. गॉट इट? वंस अगेन लिसन केयरफुली. इट इज़ रिटन इन हिंदी ऑल्सो. यू कैन सी प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब का जो फॉर्म रहता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब का जो फॉर्म रहता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है. यानी ऐसे ही नहीं कि जो मन में आया यूज़ कर दिए, नो, वो उसका रूल होता है और उसका रूल जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं. ओके, देयर आर टू मेन रूल्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज. रूल नंबर 1, if the verb in the principal clause is in the present or future tense, अगर principal clause का verb जो है वो present या future tense में है. Now present tense means all the 4 types: simple present or present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. In the same way future tense, simple future or future indefinite, future continuous, future perfect और future perfect continuous. यानी अगर principal clause का verb जो है, ओके, वो प्रेजेंट के 4 टाइप्स और फ्यूचर के 4 टाइप्स, यानी टोटल मिला के 8 हो गए, वो 8 में से किसी भी अगर फॉर्म में हुए, ओके, the verb in the subordinate clause may be in any tense according to the sense. Then अब क्या करना है इसमें,
कि अगर ये आठों में से किसी फॉर्म में हुए तब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब फॉर्म होगा वो किसी भी टेंस में हो सकता है। यानी अगर प्रेजेंट, बस इसमें पास्ट माइनस है, ओके, पास्ट को छोड़ देना है, बस प्रेजेंट और फ्यूचर, ओके। अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब फॉर्म जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब फॉर्म जो है ये किसी भी वर्ब फॉर्म में हो सकता है। गॉट इट? यू कैन सी आई हैव रिटन इन हिंदी ऑल्सो फॉर योर कन्वीनियंस। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। अब किसी भी टेंस में हो सकता है का मतलब ये नहीं हो गया दैट जो मन में आया, मेरे मन में आया V3 लिखने का तो आई हैव रिटन इन V3, आई वॉन्ट टू राइट इन V2, देन आई वॉन्ट टू राइट इन V5, देन आई विल राइट इन V5। नो, ऐसे नहीं करना है। You can see one more sentence is added here, according to the sense। अब उसके सेंस पर भी डिपेंड करता है कि उसका सेंस क्या निकलेगा, सेंस क्या निकलना चाहिए, सेंस क्या निकल रहा है, ओके। यू विल ऑल्सो मीन्स इसको भी ध्यान में लेके चलना है, ओके। सी हियर फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट और फ्यूचर, द सेंटेंस इज दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, आई नो, दिस इज इन प्रेजेंट, एंड और आई शैल नो, दिस इज इन फ्यूचर। तो अगर आई नो है हमारा प्रेजेंट, प्रिंसिपल क्लॉज अगर है आई नो हमारा, ओके, जो कि प्रेजेंट फॉर्म में है, देन वी कैन यूज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज लाइक इन एनी फॉर्म। what he is doing, this is also correct, what he was doing, this is also correct, I know what he is doing, I know what he was doing, I know what he will be doing, I know what he had done, I know what he will have done। ये सभी, all the sentences are correct, all the subordinate clause that we are using here, okay, they are correct, ये सभी correct हैं। in the same manner I shall also, I shall what he is doing, I shall what he was doing, means ये भी वैसे ही पूरा करेक्ट हो रहा है। बट अब इसका ये मतलब नहीं कि आई नो है तो कुछ भी जो मन में आया हम वो लिख दिए, नहीं। अब उसके सेंस पे डिपेंड करता है कि सपोज़ कि आई नो है तो इसके आगे कुछ जो हमारे सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो हमारा चला आ रहा है, तो उसको देखते हुए चलना है कि यहाँ पे ये बैठेगा सटीक, यहाँ पे ये सटीक बैठेगा। मीन्स यूज कोई भी कर सकते हैं, कहने का मतलब कि सेंटेंस सारा सही है हमारा, ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट यूज़ कोई भी नहीं कर सकते, यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस, ओके। Next is rule number 2. If the verb in the principal clause is in the past tense, the verb in the subordinate clause must also be written in the corresponding past tense. Corresponding means अनुरूपी, उसी के अनुरूप, okay? अगर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब जो है इफ़ इट इज़ इन पास्ट टेंस, अगर वो पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस मीन्स ऑल द टाइप्स, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। अगर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब फॉर्म जो है वो अगर पास्ट के किसी टाइप में आ गया, देन उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब फॉर्म जो होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी पास्ट में ही होगा। इट विल बी ऑल्सो इन पास्ट, ओके। पास्ट है तो पास्ट ही होगा। सी हियर, आई न्यू ही वॉज टेलिंग अ लाई। अब इसमें ये नहीं दिखना है, अब इसके फॉर्म पे नहीं जाना है दैट हियर इट इज़ V2, then here we will use V2, here is V3 and here we will use V3, नहीं, here also सेंस पे जाना है, कहीं ना कहीं सेंस को देखना होगा, ओके। आई न्यू, हाँ, बस माइंड में एक चीज़ रखनी है कि इफ़ हियर इट इज़ पास्ट तो ये पास्ट में होना चाहिए, ओके। अब ये पास्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, दैट इट इज सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस इज सिंपल फ्यूचर, सॉरी सिंपल पास्ट, एंड दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, ओके। तो ये बस टैली क्या करना चाहिए यहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ टाइप्स भी टैली करें। टैली क्या करना चाहिए कि टैली बस टेंस टैली करना चाहिए कि पास्ट है तो पास्ट होना चाहिए, ये चीज़ टैली करना चाहिए। बाकी चीज़ें सेंस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ही वर्कड हार्ड सो ही माइट पास। इन सम केसेस इफ़ द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेसेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है कुछ वहाँ का जो वर्ब है, ओके, वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है और हैबिचुअल एक्शन या किसी की आदत संबंधी बातों का जिक्र हो रहा है, ओके, इट इज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंट टेंस, देन इट विल बी ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस। फिर इस रूल को अप्लाई नहीं करना है कि इन प्रिंसिपल क्लॉज में तो पास्ट है तो इसमें भी पास्ट यूज़ करेंगे, नहीं, तब यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज हियर इन सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट ही रहेगा।
एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे प्रेजेंट में ही रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, फिर वो ये किसी रूल को नहीं मानता. ओके, गॉट इट. इवन इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस. ठीक है, ये नहीं देखना है कि फिर अरे प्रिंसिपल क्लॉज का तो अरे ये बताया तो ये गया था कि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी है दैट विल बी ऑल्सो इन पास्ट टेंस. नो, ओके, ऐसा नहीं है. बिकॉज इफ देयर इज वी आर टॉकिंग इफ देयर इज द सेंटेंस रिगार्डिंग यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, देन देयर वी विल यूज ओनली एंड ओनली present tense. You can see in example, the old father told his sons that union is strength. Told, it is V2, it is past, but here we can't write union was strength. ये सार्वभौमिक सत्य है, this is universal truth, so here we will use is. Okay, once again, second example, I was sorry to hear that he has a bad temper. Okay, दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिचुअल एक्शन. हम लोग यहाँ पे किसी की आदत की बात कर रहे हैं. आई वॉज सॉरी टू हियर, वॉज दिस इज़ इन पास्ट. ओके, दैट ही हैज़ अ बैड टेम्पर, आदत संबंधी बात हो रही है, दैट्स वाई वी विल यूज़ हैज़. ओके, ये हमारा प्रेजेंट में हो जाएगा. ये नहीं कि यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी हम लोग वॉज यूज़ कर देंगे, नो, या फिर हैड यूज़ कर देंगे, नो. हियर वी विल यूज़ हैज़ बिकॉज इट इज़ हैबिचुअल एक्शन. और जहाँ पे हैबिचुअल मीन्स हैबिट रिलेटेड वी आर टॉकिंग, ओके, आदत संबंधी बातें हो रही है या फिर वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, देन वी विल यूज़ इन प्रेजेंट फॉर्म. ओके, नेक्स्ट इज इफ द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, देन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसमें उसका वर्ब जो है उसके वर्ब के साथ कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन दैन, THAN दैन, ओके, इसका यूज़ किया जा रहा है, देन द वर्ब मे बी ऑफ एनी टेंस इवन दाउ देयर इज़ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज. अब ना सिर्फ ये रूल लागू होता है पास्ट टेंस पे, बट ये भी लागू होता है. इसको भी माइंड में लेके चलना है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब जो है, इफ़ द वर्ब ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके, इट इज़ फॉलोड बाय द कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन देन, अगर कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन देन का यूज़ हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के साथ, तब फिर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो है, प्रिंसिपल क्लॉज का जो टेंस जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ओके, यू कैन सी हियर एवरी रिटन इन हिंदी ऑल्सो. यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के साथ तुलनात्मक शब्द देन का यूज़ करते हैं, देन प्रिंसिपल क्लॉज को वर्ब किसी भी टेंस, प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है, फिर चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो. अब यहाँ पर भी ये चीज़ लागू, बस देन जहाँ आ गया तो देन का मतलब ही फिर वो पास्ट के रूल को नहीं मानता, कि फिर ये नहीं मानता कि यहाँ पास्ट है मेन में तो सबऑर्डिनेट में भी पास्ट होगा. नहीं, देन लग गया यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन लग गया, देन वी विल यूज़ अकॉर्डिंग टू द सेंस. सी, शी लाइक्ड हिम, दिस इज सिंपल पास्ट. ओके, मोर दैन शी लाइक्स यू, अब यहाँ पे देन आ गया. ओके, ये विटू के साथ देन आ गया हमारा. अब देन आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे लाइक्स सटीक बैठता है, देन हियर वी विल यूज़ लाइक्स. शी लाइक्ड ही मोर देन शी लाइक्स यू अकॉर्डिंग टू द सेंस. सेंस पे जाना है, ज़रूरी नहीं कि अब यहाँ पे जब लिख दिया गया कि देयर इन द देन द वर्ब में बी ऑफ एनी टेंस, वो एनी टेंस का कहने का मतलब कि अब उठा के कुछ भी नहीं लिख देना है, वो समझना होगा, सेंस को समझना होगा थोड़ा, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट. ठीक है, नेक्स्ट इज ही हेल्प्ड अस मोर दैन, अगेन यू कैन सी हियर इज V2 एंड हियर इज इट इज फॉलोड बाय दैन conjunction of comparison. Okay, then the sentence is he helped us more than he helps his relative. Here also V1 का यूज़ किया गया है. ओके, सो द मीनिंग इज़ complete here. अब हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है. अगर यहाँ पे हम V2 दे के यहाँ भी हम लोग वी वुड यूज़ V2 तो हमारा सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत हो जाता. ओके, सो वी हैव टू, अब बट इसका ये भी मतलब नहीं हो गया दैट यू कांट यूज़ पास्ट, you can't use past. okay, you can use past, but past हम लोग कब यूज़ करेंगे,
जब जहाँ पे ना तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ना ही हैबिचुअल एक्शन हो और ना ही कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन हो, देन वी विल यूज़, तब हम लोग पास्ट है तो पास्ट यूज़ करेंगे। और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं देन वेयर वी विल यूज़ अकॉर्डिंग टू द सेंस।